सी कभी कभी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में डिस्कस द प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. Procedure for formation of a company. There must be association of person whose desire of forming a company. मतलब procedure for formation, so there should be association of person. Some people should come together. If the company is to be incorporated as a private company, there must be at least 2 persons, and in public company there must be at least 7 persons. In case of a person to be company to be formed is 1 person company, it must have 1 person. So you have 1 person wala, 2 person wala private, and you have 7 person wala public limited. Follow this. The person should subscribe your name or his name to a memorandum. Memorandum में उन सबका नाम लिखने का कि जो लोग पहले साथ में आए, मिनिमम 70 भी हो सकते हैं. 70 लोग भी हो सकते हैं साथ में, खाली 7 ही नहीं चाहिए, 7 से कम 7 होने चाहिए. 8, 9, 10, 15 भी चलेंगे. द पर्सन सो एसोसिएटेड मस्ट हैव कॉमन ऑब्जेक्ट. एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए उनमें. तो 7 लोग का साथ आना और फिर एक कॉमन ऑब्जेक्ट. ओके, सामूहिक ध्येय होना चाहिए. Lawful, the purpose for which company is to be proposed to be incorporated must be lawful. So the common object should be lawful. The memorandum and the articles of the company must be subscribed by at least 7 person in case of a public company and at least 2 person in case of a private. ये हमने पहले भी किया है. अभी ये लोग साथ में आगे मेमोरेंडम बना दिया, आर्टिकल्स बना दिया. 7 लोग या 2 लोग या 1 लोग जिस टाइप ऑफ कंपनी है वैसे बना दिया. आया समझ में? And they should have common object and they should be done for, and they can be, object should be lawful. Okay. Now application availability of name क्या होता है कि first we have to, before filing documents are ready, we must have suggested a name. Now it is quite possible that the name which you suggest is resembling name of other company. You may not even know it. It may not be allowed by central government. एक हमने नाम पूरा कर दिया, फिर लास्ट में बोलेगा अरे ये नाम तो नहीं चलेगा. क्यों नाम नहीं चलेगा? अरे आपका नाम तो उससे मैच कर रहा है. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, बिफोर we start registration, you have to apply not for registration of the company, not for incorporation, but availability of name. An application in prescribed form number 1 shall be made to the registrar for ascertaining the availability of proposed name. Don't write the word name. क्या proposed name होना चाहिए? proposed name है कि नहीं? The registrar shall inform as to whether the proposed name is available or not. Upon receipt of the application under section 4.4, the registrar may reserve the name. If the name is available, then they will reserve the name for 60 days. 60 दिन तक आपका नाम रिजर्व रहेगा. मतलब वो नाम फिर दूसरे को 60 दिन कभी नहीं देंगे. बिकॉज नाम मिल गया, पहले नाम मिलना चाहिए. अगर नाम नहीं मिलता तो बोलेंगे चेंज करो. तो यू हैव टू गिव 4-5 ऑप्शंस. मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड. सो दे विल चेक. नो, फर्स्ट इज नॉट अवेलेबल, सेकंड इज नॉट, थर्ड इज अवेलेबल. So third is booked for you, but not fully booked. For how many days? They will reserve your name. Means suppose you are telling that I want company called, say,
कुछ नाम है, सपोज एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड से मुझे रजिस्टर करना है, तो ठीक है अवेलेबल है, तो 60 दिन के अंदर एक्स वाई जेड किसको नहीं देंगे, और या उसके सिमिलर भी किसको नहीं देंगे, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. ओके, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड. फिर नाम अवेलेबिलिटी हो गया, तो एक बार कुछ तो नाम मिलेगा ना आखिर में, कोई नाम से है ना, सब तो नॉट अवेलेबल नहीं होंगे. तो वंस द नेम इज रिजर्व्ड, you have to file the document. After obtaining the approval, the following document should be filed with the registrar. Memorandum of association, articles of association signed by the subscriber to the memorandum, statutory declaration stating that all the requirements relating to registration of the company has been complied with. Such a declaration has to be filed by any of the following persons. मतलब है ना, लिख के देना पड़ता है कि पहले तो मेमोरेंडम दो, आर्टिकल्स दे दो उनको, और उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए सबकी, सब्सक्राइबर्स की. देन यू टू गिव अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लाइड विथ. सच डिक्लेरेशन हैज टू बी फाइल्ड. हु विल फाइल, एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हमने कंपनी की सब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट की है. इट शुड बी साइंड बाय एडवोकेट or a chartered accountant or a cost accountant or a company secretary in whole time practice who is engaged in the formation of the company, and such declaration should also be filed by the following persons. Now a declaration देंगे either CA, cost accountant, advocate, company secretary, persons named in the articles as directors, manager or secretary of the company. ये लोग भी साइन करेंगे जिनका नाम डायरेक्टर, मैनेजर और आर्टिकल्स में लिखा है ना सेक्रेटरी. क्या लिख के देंगे कि भाई हमने नाम किया हुआ है. अच्छा, ये अलग पॉइंट है. ओके, देन ये वन लिखना चाहिए और ये डी बराबर है फिर. एंड अभी चौथी डॉक्यूमेंट क्या है, तो 3 डॉक्यूमेंट हो गए क्या, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, अंडरटेकिंग बाय दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन फाइल्ड. हाँ, अब है ना जो लोग सब्सक्राइबर है उनकी डिटेल्स चाहिए. एन एफिडेविट फॉर्म्स इज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड द पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स इन द आर्टिकल्स. एफिडेविट देंगे, वो लोग लिख के देंगे कि such an affidavit shall state that he is not convicted of an offense in connection with the promotion, formation or management of the company. promotion, formation, management में हमने कभी फ्रॉड में कन्विक्ट नहीं हुए हैं, फ्रॉड किया नहीं, लिखने का नहीं, हम कभी पकड़े नहीं गए और सजा नहीं हुई है. ओके, और दैट he has not been found guilty of any fraud, misfeasance or any breach of duty to the company under the act. So he is not convicted of an offense in connection with promotion, formation and management of the company, and he has not been found guilty for any fraud or misfeasance or any breach of duty to the any company under the act or under the previous law. तो कभी भी हमको इस चोरी करने की सजा लास्ट 5 साल में नहीं मिली है. The affidavit shall also state the documents filed with the registrar for registration of the company contain correct information and the information is complete and true to the best of their knowledge. So एक undertaking देनी पड़ती है किसको, who will give undertaking? 2 kind of persons who are subscribers to the memorandum and the persons who have been named as the first director in the articles. जो लोग डायरेक्टर्स घोषित किए गए हैं, डिक्लेयर किए गए हैं आर्टिकल्स में, और जो लोग ने सब्सक्राइबर मेमोरेंडम का साइन किया है, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है. मिनिमम 7 आदमी होते पब्लिक कंपनी में और 2 people इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. सो दीज पीपल विल हैव टू व्हाट, वी हैव नॉट बीन कन्विक्टेड, वी हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी, एंड दैट वॉट एवर वी हैव स्टेटेड, that whatever documents we have filed for registration contain correct information and information is complete and true. मतलब complete भी है, true भी है और correct भी है, ये सब देना पड़ेगा.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, नहीं वो डायरेक्टर सेम ही है, इस पे क्या है स्पेलिंग मिस्टेक, इधर डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर सेम ही हुआ ना, और क्या. I'm not getting it. What is the difference between address for correspondent till the registered office is established? जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होती है तो हम आपको फर्स्ट डायरेक्टर्स है ना, कि वो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स. अच्छा, फर्स्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं कि पहला डायरेक्टर कौन था. आर्टिकल्स अभी तो कंपनी बनने के बाद डायरेक्टर बनेंगे ना, तो आर्टिकल्स में पहले किसी के नाम लिख देते कि भाई ये लोग डायरेक्टर, पहले डायरेक्टर ये लोग बनेंगे, फिर दूसरे आएंगे आस्ते आस्ते. तो फर्स्ट डायरेक्टर्स लोग लिख के देंगे, क्योंकि अभी कंपनी बनी है तो जो भी होगा फर्स्ट डायरेक्टर ही होगा ना. एफिडेविट मीन्स शपथ, शपथ पत्र, बरोबर. ओके. Names including surnames and family names, residential address, nationality and other particulars of every subscriber to the memorandum along with the proof of identity. तो नाम, एड्रेस, फिर उसके अलावा क्या, रेसिडेंशियल एड्रेस और उनका नेशनलिटी कहाँ कहाँ है. In case subscriber is a body corporate, such particulars as prescribed. तो नाम, एड्रेस, नेशनलिटी और नाम, सरनेम, एड्रेस और नेशनलिटी बताने का सबका. Particulars of person mentioned in the articles as first director shall be furnished. Such particulars, उनके भी नाम including surnames, directors identification number, residential address, nationality and such other particulars including proof of identity. इसमें खाली एक चीज एक्स्ट्रा है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. क्या होता है बताता हूं. जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है ना उसको DIN लेना पड़ता है, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है. फिर वो जहां जहां डायरेक्टर है ना उस सब जगह उसका नंबर जाता है. तो डायरेक्टर होता है उसको DIN होता है, लेकिन सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम वो डायरेक्टर नहीं भी होगा तो उसको तो DIN नहीं होगा ना, क्योंकि डायरेक्टर थोड़ी है, वो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है. हाँ, कोई आदमी दोनों भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है और सब्सक्राइबर भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि एक आदमी एक ही होगा. Where the first directors mentioned in the articles have interest in other firms. First directors in the articles have interest in other firms or other body corporates. The particular of such interest should be furnished. Consent of the persons mentioned in the articles to act as directors of the company. देखो ये सब डॉक्यूमेंट्स करने के, डायरेक्टर्स के, सब्सक्राइबर के पर्टिकुलर्स, नेम, सरनेम्स, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. सिमिलरली डायरेक्टर्स का भी सेम, फर्स्ट डायरेक्टर्स का भी सेम, नेम, एड्रेस है ना, सरनेम्स, देन नेशनलिटी एंड DIN नंबर. Issue of certificate of incorporation. The registrar shall retain the documents and register the documents and information filed with him and issue a certificate of incorporation. ये सब फाइल करोगे तो आपको रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट रख देगा, रजिस्टर करेगा, इंफॉर्मेशन लिखेगा रजिस्टर में, फाइल विथ हिम एंड इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो बहुत बहुत बधाई हो, आपकी कंपनी बन गई. Follow this. The registrar shall allot company corporate identification number, CI number, which shall be distinct identity for the company and which shall be included in the certificate. If any person furnishes any false information or suppresses any material information of which he is aware, अगर तुमने कुछ झूठ बोला है
यहाँ कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाइए. और इन सच एनी डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार he shall be liable for action under section 447. The registrar shall retain and register the documents filed with him and afterwards register the company as he is satisfied that the registrar shall retain and certificate दे देगा. All requirements have been complied with and the company is authorized to be registered. So certificate of incorporation आपको मिल जाएगा. Certificate of incorporation shall be issued in form number INC 11. Okay? तो ये था कहानी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. आया समझ में कि नहीं? हाँ, सब डॉक्यूमेंट रजिस्टर करो और सर्टिफिकेट ले लो, लेकिन पहले नेम अवेलेबिलिटी. क्या है नेम अवेलेबिलिटी? डॉक्यूमेंट्स. फिर डॉक्यूमेंट्स क्या? मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, अंडरटेकिंग. भाई हम कभी पकड़े नहीं गए, मतलब हमने ये नहीं बोला हम चोरी नहीं किया, हम पकड़े नहीं गए. देख, वी हैव नॉट बीन कन्विक्टेड, हमको आज तक सजा नहीं हुई है. वी हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी, अभी तक हम लोग दोषी करार नहीं दिए गए हैं. फिर एफिडेविट है ना, एफिडेविट देने का ही है ना. अच्छा, ये एडवोकेट देंगे. सब लोग हमने पूरा काम किया है और ये लोग भी नेम देंगे, सेक्रेटरी वगैरह भी देंगे. फिर एफिडेविट देंगे कि हम पकड़े नहीं गए हैं. फिर नाम एड्रेस देने का और फिर वो लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे ना. एंड जो लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स बनने वाले हैं ना, उनका कंसेंट. हाँ, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स याद करके लिख के आने का और क्या. अब ये सब तो हमने कर दिया है. अभी देखिए बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछते हैं. फिर भी मॉड्यूल देख लेना कुछ हो तो. शेयर कैपिटल, share capital and state the shares of different kinds. Now, meaning of share. A share is the smallest unit into which share capital is divided. A smallest unit मतलब शेयर कैपिटल होता है ना, उसको डिवाइड करते हैं तो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल. जैसे 10 रुपए का शेयर है तो फिर उससे कम नहीं हो सकता है. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड. शेयर कैपिटल को डिवाइड करते हैं, उसको शेयर बोलते हैं. द शेयर्स एंड डिवेंचर्स शेल बी मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल. सो शेयर्स एंड debentures are movable property and they are transferable as per the provisions of the articles. जैसे भी आर्टिकल्स में लिखा है उसके हिसाब से ट्रांसफरिंग हो रहा है. Every share shall be distincted by its number. Exception, shares held in depository system shall have no distinct number. देखो मैं बताता हूँ, ये डिपॉजिटरी सिस्टम में डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा. पहले क्या होता ना, शेयर सर्टिफिकेट होता था एक एक का. मतलब आपको 5 शेयर है तो आपको सर्टिफिकेट देंगे, लिखेंगे शेयर नंबर 1 to 5 सर्टिफिकेट होता था. अभी ऐसा नहीं होता है. अभी शेयर हमारे अकाउंट में होते हैं. हाँ, शेयर हमारे अकाउंट में होते हैं तो बोलते 5 शेयर है, उसका नंबर नहीं कुछ. जैसे अगर हमारे जेब में पैसे होते हैं ना, नोट होते हैं ना, नोट, करेंसी नोट देखा है ना, करेंसी नोट्स. हाँ, तो करेंसी नोट के नंबर होते हैं. उसी तरह शेयर्स के नंबर होते हैं, लेकिन जो पैसा हमारा बैंक में होता है उसका नंबर होता है क्या? उसका अकाउंट नंबर होता है. उसके क्या शेयर का नंबर होता है क्या? नोट का नंबर होता है क्या? कि मेरे बैंक में 500 के नोट पड़े तो कौन सा नंबर वाले नोट पड़े, ऐसा होता है नहीं. तो वो शेयर भी ऐसे होते हैं. जो शेयर फिजिकल फॉर्म में होते हैं उनके नंबर होते हैं. ओके,
Shares held in depository system shall not have distinctive numbers. आई बात समझ में? काइंड्स ऑफ शेयर्स. नाउ काइंड्स ऑफ शेयर्स समझ में आया या शेयर समझ में आया कि नहीं बताओ? शेयर्स क्या होता है? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. Shares and debentures are movable property. Section 44 and section 45 says that every share should have a distinct number, but shares which are held in depository form need not have any numbers. Kinds of shares, what are they? Share capital. Share capital shall be of two kinds, namely preference share capital, equity share capital. दो टाइप के शेयर होते हैं. एंड विथ वोटिंग राइट्स, विथ नो वोटिंग राइट्स एंड विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. तो इक्विटी शेयर भी दो प्रकार के होते हैं, विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स टू डिविडेंड वोटिंग राइट्स, वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स. तो एक तो प्रेफरेंस शेयर होते हैं और एक इक्विटी शेयर होते हैं. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, share capital carrying preferential right with respect to dividend and repayment of capital is termed as preferential share capital. Now preference share capital मतलब क्या होता है? Preference in ये देखो, प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड मीन्स अगर डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं तो पहला प्रेफरेंस शेयर्स विल रिसीव डिविडेंड एंड देयर आफ्टर डिविडेंड विल बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. हैव यू फॉलो दिस? प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इट मीन्स इफ द कंपनी इज वाउंड अप, creditors will be paid first and thereafter preference shareholders will be paid and at the end equity shareholders. मतलब पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, हाँ, तो उसको प्रेफरेंशियल बोलते हैं. ओके ओके. नाउ होल्ड क्या है? ये लिख दो. समझा? ये डिविडेंड भी पहले मिलेगा इनको और ये लिख दो.
Okay. Preferential as to payment of dividend. In case where dividend is declared by the company, preference shareholders will have preferential right as to payment of dividend. Such preferential right as to payment of dividend may be with respect to fixed rate, fixed amount, फ्री ऑफ इनकम टैक्स, सब्जेक्ट टू टैक्स. मतलब इनको प्रेफरेंस रहेगा, वो विद टैक्स होगा, विदाउट टैक्स होगा, या फिर इनकम टैक्स होगा उसमें या नहीं होगा, लेकिन उनको पहले मिलेगा. उनको फिक्स अमाउंट रेट मिलेगा या फिक्स अमाउंट मिलेगा, कुछ भी हो सकता है. इट मे बी विद टैक्स, विदाउट टैक्स. प्रेफरेंशियल राइट एज टू रिपेमेंट ऑफ कैपिटल. In case of winding up of the company or repayment of capital, preference shareholders will have preferential right as to repayment of the amount of share capital paid up. It should be noted that share is regarded as preference if it has preference in payment of dividend and also in preference of payment of capital. दोनों preference होने चाहिए. Okay? In addition to the above, share capital will be deemed to be preference capital if any one or both of the rights enumerated below. If preferential right as to payment of dividend and it has right to participate in the further dividend with equity capital, preference in payment of dividend and right to participate in dividend after receiving fixed dividend, such preference shares are called what? Participating preferential. A preferential right as to repayment of capital. Now see here. Now ये देखो, सुनो, ये ना, what is participating? देखो प्रेफरेंस, ये तुम लोग को पता चला, प्रेफरेंस एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, है ना. पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट, पार्टिसिपेटिंग प्रॉफिट में क्या होगा, मतलब सी dividend is paid to preference shareholders. Thereafter, equity shareholders are paid to a particular limit. Balance profit are shared by इक्विटी एंड प्रेफरेंस. देखो एक्चुअली नॉर्मल रूल क्या होता है कि पहले प्रेफरेंस को दिया, बाकी सब इक्विटी को मिल जाता है. लेकिन ऐसा भी होता है कि पहले प्रेफरेंस को देंगे, फिर इक्विटी को थोड़ा देंगे, फिर बाकी बचेगा वो दोनों बांटेंगे. तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट्स. Participating in surplus assets. See here. At the time of winding up, preference shareholders are paid their capital. Thereafter, equity shareholders are paid up to a limit
balance assets are shared by both equity and समझा ये समझ में आया सब? ये तो प्रेफरेंस एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस एज टू कैपिटल में बताता हूं इस, ये समझा चारों मैंने जो लिखा है। पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं? प्लीज यस सर नो रिप्लाई दो। मतलब देखो डिविडेंड है ना, हम लोग पहले प्रेफरेंस को देंगे, फिर इक्विटी को देंगे। अगर इक्विटी को पूरा नहीं देंगे, कुछ लिमिट तक देंगे, और फिर उसके बाद दोनों बांटेंगे। मतलब प्रेफरेंस अपनी 2 इनिंग खेलेगा। अबे ना सुनो, बताता हूं। अभी ये इक्वेशन लिखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेयर्स क्या होता है, इज इक्वल टू प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। Deemed preference shares is equal to preference in payment of dividend plus preference shares plus participating in इनको भी वो बोलेगा deemed preference share is equal to preference in repayment of capital plus participating in ये डीम्ड प्रेफरेंसेस हुए। देखो पहले बोला दोनों प्रेफरेंस चाहिए, फिर बोला अगर एक होगा तो ये वाला प्रेफरेंस है डिविडेंड वाला है ना, प्लस पार्टिसिपेटिंग है, पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट, तो भी डीम्ड प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। और अगर ये है प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ कैपिटल है प्लस पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस एसेट्स है, तो भी चल जाएगा। ओके लिखो ये पूरा। It is preferential right as to repayment of capital and as a right to participate in the surplus assets remaining after the entire capital has been repaid. Preference in the matter of payment of capital and right to participate in surplus asset. Such preferences are called deemed participating preferences. Okay, तो उसको deemed preferences बोलते हैं. Okay. Share capital will be deemed to be preference shares if it has one or both the rights enumerated. तो ये 3 तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। Shall we move on?
इक्विटी शेयर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस, तो जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी होता है. Now, distinction between equity shares and preference shares. The preference shares carry preferential right as to repayment of dividend and repayment of capital. दोनों में right होती है. The shares other than preference shares are called equity shares. Dividend on preference share is paid on in priority to equity shares. मतलब dividend on preference share is paid in priority. Equity shares are paid dividend only when dividend has been paid on. Equity shares are paid dividend only when what? Dividend has been paid on preference shares. इनको डिविडेंड पहले मिलता है, उनको बाद में मिलता है. अमाउंट एंड रेट ऑफ डिविडेंड, हाँ मतलब ये इनको पहले बोला प्रेफरेंस है और फिर वही बात बोली कि इनको पहले मिलता है. द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज पेड एट फिक्स रेट और एट फिक्स अमाउंट इज पेड. However, there may be participating preference shares. इनको फिक्स मिलता है, फिक्स रेट या फिक्स अमाउंट. द होल ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर कंपनी आफ्टर रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर. इनको तो कुछ फिक्स नहीं है ना, पूरा प्रॉफिट इनका है, जो बच गया, नहीं बचा तो कुछ नहीं. In winding up, repayment of preference capital is first made in priority to repayment of equity capital. तो कैपिटल के टाइम पहले किसको देते हैं भाई? In winding up, equity capital is paid only after preference capital is paid. ये सेम बात बोली है कि कैपिटल इनको पहले मिलता है. देखो ये 4 पॉइंट की एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट बोल दिया इसने, फिर ये दोनों बोला, प्रेफरेंस के राइट डिविडेंड में भी इसको अच्छा है और इक्विटी में भी अच्छा है ना. फिर इसमें बोला कि डिविडेंड में अच्छा है, फिर यहाँ पे बोला कि कैपिटल में भी अच्छा है उसको, सेम पॉइंट. द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल हैव नो राइट टू वोट इन द जनरल मीटिंग एक्सेप्ट ऑन सर्टन केसेस. हाँ अभी है ना, इनको सबके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट वोट ऑन ऑल मैटर्स, दे कैन वोट ओनली ऑन सर्टन मैटर्स. Equity shareholders can vote on all matters. Redemption of our preference shares are always redeemable. No company can issue irredeemable preference shares. मतलब उनको पैसे वापस देने पड़ते हैं. Equity shares are always irredeemable. No company can redeem equity shares during the lifetime. Preference shares are not, redemption means repay. रिडम्पशन मतलब ओके वापस देना. फॉलो दिस कि नहीं? बोनस नहीं मिलता है इनको. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू बोनस. इक्विटी शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू बोनस. हाँ, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर, सच डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड इट इज टू बी पेड इन फ्यूचर. है ना, अगर एक साल का डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर डबल मिलेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव. अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो छोड़ दो, लेकिन वैसे प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉर्मली क्यूमुलेटिव. इफ दिस 1 year डिविडेंड इज स्किप्ड, दे विल गेट डबल डिविडेंड नेक्स्ट ईयर. राइट शेयर्स मीन्स स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं. राइट शेयर्स मतलब तुम लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं है इसमें. हाँ, सिलेबस में बिल्कुल नहीं है.
जो लिखा है ना बस उतना ही है। राइट इक्विटी शेयर्स मतलब हम लोग शेयर ऑफर करते हैं न्यू शेयर्स, तो नए शेयर हमको पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने पड़ते हैं। Since the equity shareholders are not entitled to any fixed rate or amount of dividend, if the dividend is not declared in any year, such dividend lapses and therefore the equity shareholders has no right to receive the dividend declared, dividend not declared. इनका dividend नहीं मिला, एक साल तो गया, वो साल गया। हाँ, इनका ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, अब है ना ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल। मीन्स सच कैपिटल as is authorized by the memorandum of company to be the maximum amount of share capital of the company. Now, what is authorized capital or nominal capital means what? Such capital as is authorized by the memorandum of the company to be the maximum amount of share capital of the company. The maximum shares, simply speaking, authorized capital means the maximum capital that can be issued by the company during its lifetime. A company cannot issue capital exceeding authorized capital. In case the company intends to issue capital exceeds authorized capital, it has to increase the authorized capital. तो सेक्शन 61 में क्या है, आपको जितनी परमिशन दी है ना उतना ही करो। आप परमिशन बढ़ा के ले लो, लेकिन इश्यू मत करो पहले से। फर्स्ट टेक परमिशन। The amount of authorized capital is stated in the memorandum of association, that is called capital clause. At the time of registration of the company has to pay fees to central government, which is calculated with respect to authorized capital. So when you register, no, you have to pay fees based on authorized capital. Authorized capital ज़्यादा होगा, fees ज़्यादा भरनी पड़ेगी registration. Similarly, at the time of increasing the authorized capital, the company has to pay fees to central government, which is calculated on the basis of difference between authorized capital and existing capital. अगर increase करोगे तो फिर extra fees भरनी पड़ती है। Issued capital means such capital which the company issue from time to time for subscription. Simply speaking, issued capital is a part of authorized capital. Okay. Subscribed means that part of capital which for the time being is subscribed by the members. See है मतलब ये लिखो, ये ऐसा होता है, जितना वो लोग ने उनको अलॉट किया ना शेयर, वो सब्सक्राइब्ड है। अभी सब्सक्राइब्ड मतलब वचन दे दिया है। राइट शेयर्स और सब्सक्राइब मतलब वो लोग ने जितना लिया है। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब हम लोग कितना कॉल करेंगे। ओके। एंड पेड अप मतलब वो लोग ने पे किया है उतना। पेड अप कैपिटल और शेयर कैपिटल मीन्स एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी
credited as paid up is equivalent to the amount received as paid up with respect to the company. मतलब देखो authorized capital of a company is 30,000 shares of rupees 10 each, that is equal to rupees how much? 3 lakhs. Company issues 25,000 shares of rupees 10 each. तो 2,50,000. Okay. Company receives application for 40,000 shares of rupees 10 each. Company allots 29,000 shares. जानबूझ के मैं 30 नहीं ले रहा हूँ, हाँ, शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. तो क्या होगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज रुपीज 2,90,000. यानी लिख दो पूरा. हाँ, कंपनी कॉल्स रुपीज 8 ऑन शेयर्स. तो 29,000 इंटू 8, तो ये क्या होगा? कॉल्ड अप कैपिटल. लिख दो सब. 25,000 शेयर्स उन लोग ने ऑफर किया. अरे सॉरी इधर 24 लिख दो. 24, हाँ, 24 इंटू 10, तो ये 2,40,000. हाँ, $192 is called up. ओके, लिख दिया सब ये. इश्यूड कैपिटल, कंपनी ने इश्यू कितना किया? 25,000 शेयर्स. ऑफर किया कि हम 25,000 देंगे, तो इश्यूड कैपिटल हो गया. इनको अलाउड कितना था इश्यू करने का? 30. पर लोगों ने बोला हम सब इश्यू नहीं कर रहे हैं. ऑफरिंग कितना कर रहे हैं? 25. एप्लीकेशन आ गए 40. तो ये कुछ नहीं, ये एप्लीकेंट से, इसको कुछ नहीं होता है. फिर हमने अलॉट कितने किए? 25 अलॉट नहीं किए, 24 ही किए अलॉट. तो ये इश्यूड हो गया, ये सब्सक्राइब्ड हो गया. फिर लोग ने कॉल किया, पब्लिक को ऑफर कितना किया? ऑफर टू पब्लिक
फॉलो दिस, एप्लीकेशन शुड बी रुपीज। हाँ वो है, रूल है, लेकिन वो तब तुम लोग को नहीं है साहब, यू डोंट हैव ऑल दैट इन सिलेबस, ओके। हाँ वो नहीं है, सब रूल्स नहीं है तुम लोग को सिलेबस में, खाली कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। वो सेबी रूल्स है, सेबी के, वो तुम लोग को आईपीसीसी में है। ओके every equity shareholder shall have a right to vote on every resolution। हर रेजोल्यूशन पे वोट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। वोटिंग राइट्स ऑन अ पोल, द वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर शेल बी इन प्रपोर्शन टू द शेयर्स इन द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब बेस्ड ऑन पेड अप कैपिटल, ओके। More paid up capital will have more voting rights। For Nidhi companies, it shall be provided that no member shall exercise voting power on the polls in excess of 5% of निधि कंपनीज होती है ना, उसमें कोई भी शेयर होल्डर को, निधि कंपनीज क्या होती है हमने किया है ना, उसमें कोई भी आदमी को 5% के ऊपर राइट्स नहीं होगा, भले कितना भी शेयर होगा। तो ये मालूम पड़ा, ये लोग सब पे बात कर सकते हैं, और इन प्रपोर्शन टू दोज हु हैव मोर कैपिटल विल हैव मोर वोटिंग राइट्स। एनी डाउट्स? Voting rights of preference shareholders. Every preference shareholder has right to vote only on such resolutions which directly affect their rights. So they cannot, no one share one vote। हाँ नहीं, पेड अप कैपिटल के हिसाब से होता है। हाँ, यू कैन से वन शेयर वन वोट इफ दे आर इक्वली पेड अप। On such resolutions which directly affect their rights, on any resolution for the winding of the company, and on any resolution for repayment or reduction of share capital. So, preference shareholders can vote only on 3 matters. What are they? Resolution affecting their rights, resolution relating to winding of the company, and resolution relating to reduction of share capital। आई बात समझ में? On a poll, the voting rights of every preference shareholders shall be in proportion to the पेड अप प्रेफरेंस शेयर। ये पोल होगा तो उनको भी पेड अप कैपिटल के हिसाब से होगा। लेकिन ये बात नोट करना कि ये लोग खाली 3 ही मैटर पे वोट कर सकते हैं और ये लोग सब पे वोट कर सकते हैं। एंड वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आर बेस्ड इन प्रपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल। सेम इज द केस विद इक्विटी। अच्छा, इन सम केसेस कैसे? इफ डिविडेंड ऑफ एनी क्लास ऑफ
if dividend of any class of शेयर्स as not paid for 2 years or more, अगर देखो प्रेफरेंस डिविडेंड को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड देना होता है, लेकिन उनको अगर 2 साल या उससे ज्यादा नहीं दिया है, डिविडेंड 2 साल से नहीं दिया उनको, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ सच क्लास हैव अ राइट टू वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन. सो इफ उनको राइट, अगर उनको 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो फिर लोग 2 साल के बाद सब शेयर्स पे वोट कर सकते हैं, सब मैटर पे. इफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर हैव अ राइट टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन, देन वोटिंग राइट्स, चलो ये छोड़ो, वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शैल बी इन प्रपोर्शन टू द इक्विटी कैपिटल. नाउ सी हियर, दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, हाँ ये बहुत टेक्निकल है, हाँ समझा ये, हाँ ये छोड़ दो, ये काट दो, कुछ नहीं. Follow this. अभी देखो क्वेश्चन देखो क्या है. रवि लिमिटेड हैज बोरोड 5 crores फ्रॉम मुद्रा फाइनेंस. द डेब्ट इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी. एग्जामिन द वेदर द कंपनी इज लायबल टू पे द डेब्ट. टेल मी, नहीं बताओ. हाँ, निधि कंपनी में अगर किसी को 90% शेयर्स है ना, तो भी उसको 5% वोटिंग राइट्स के ऊपर नहीं होगा. हाँ, लायबिलिटी तो उसकी कम नहीं रहेगी ना. ओके, नाउ रवि प्राइवेट लिमिटेड बोरोड. तो ये क्या है? एज पर द फैक्ट्स गिवन रवि लिमिटेड बोरोड. देखो लोग ने सीधा इट इज नल एंड वॉइड, ये आंसर है सीधा, है ना. अभी लिखेंगे कैसे? एज पर द फैक्ट्स गिवन रवि बोरोड 5 crores फ्रॉम फाइनेंस लिमिटेड. दिस डेब्ट इज अल्ट्रा वायरस, which signifies that Ravi Limited has borrowed an amount beyond the express limit prescribed in the memorandum. The act of the company can be is said to be null and void. In consequences of any act done or a contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also the company is wholly void and inoperative in law, and therefore not binding on the company. Any contract made by the company which is beyond the powers of the company you can give introduction of ultra virus और फिर ये लिखने का क्या, is wholly void in law and therefore not binding on the company. ये मेन चीज लिखनी है. सो इन फिर देखो पहले क्या होता है, ये लॉ है, देखो ये लॉ है, ये फैक्ट्स है. तो एक्चुअली पहले लॉ लिखना चाहिए, फिर फैक्ट्स, फिर कंक्लूजन. सो इज बीइंग द एक्ट वॉइड इन नेचर, देयर बीइंग नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रवि लिमिटेड एंड मुद्रा लिमिटेड, देयरफॉर द कंपनी इज नॉट द कंपनी रवि लिमिटेड इज लायबल टू पे द डेब्ट अमाउंट ऑफ द लिमिट. जितना मेमोरेंडम में लिमिट है ना वहां तक लायबल है.
ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सी इफ पूरा माफ नहीं हो जाएगा, ये लिख दो। फॉलो दिस। अभी देखो 1% कंपनी हमने किया है कि नहीं? 1% कंपनी के 17 पॉइंट्स किए हमने। ये समझ में आया क्वेश्चन? डायरेक्टर्स विल बी लायबल फॉर टू आउटसाइड पार्टीज, यस, पर वो सेपरेट केस है वो। आया समझ में? डिफाइन ओपीसी एंड स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग मेंबरशिप, है ना? उसका मेंबरशिप वालों सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट होना चाहिए। 17 पॉइंट लिखा है ना, वो लिखना, ये मत लिखना। अदर ये सब रूल्स किए हमने, 17 रूल्स हैं ना अपने। हाँ, OPC cannot be converted into cannot convert voluntary into any kind of company unless 2 years have expired, except where share paid up share capital is increased beyond 50 lakhs। और ये किया ना हम लोग ने कन्वर्शन। हाँ, ये सब हमने राइट आंसर्स फ्रॉम द शीट्स विच आई हैव गिवन यू और नॉट। अभी PDF भेजा था कि नहीं? 17 पॉइंट लिखे थे नहीं? State the limitations. We have done yesterday 5 limitations are there. मतलब who cannot take the benefit of indoor management? You cannot take the benefit of indoor management if you have knowledge of irregularity. Directors खुद को लोन दे रहे हैं, मालूम है illegal है। हाँ, suspicion of irregularity. Accountant selling the property of the company. We have done this, no? Forgery. ये 3 ही दिया है हम लोग ने, और भी 2-3 दिए थे कि नहीं?
याद है कि नहीं? इलीगल ट्रांजेक्शन्स, हाँ है ना, और एक था ना इलीगल ट्रांजेक्शन और फोर्जरी। तो इन सब में आप 4 है मेरे ख्याल से, एक नंबर मिसिंग है उसमें। तो ये लोग ने 3 दिए हैं, ठीक है। और इलीगल ट्रांजेक्शन में अल्ट्रा वायरस में भी नहीं चलता है। इरेगुलरिटी क्या है? अल्ट्रा वायरस है, फिर क्या है? यू कैन ऐड नो। फोर्थ वन क्या? और 5वां क्या? ये 5 में नहीं चलता है। The object clause of memorandum of a ABC authorized the company to carry on business of trading in fruits and vegetables. The directors of the company recently concluded decided to, and accordingly the company ordered a fish for the purpose of trading. FSH Limited supplied fish to ABC worth rupees 36 lakhs. Wow. The members of the company convened a general meeting and negated the proposal of the board on the ground ultravirus. FSH Limited, ये अल्ट्रावायरस है ना, इनका धंधा क्या है भाई? फिश का नहीं है, इनका फ्रूट और वेजिटेबल्स का है। हाँ, फ्रूट और वेजिटेबल्स का है, तो लोग नहीं कर सकते हैं ना। The meaning of the term ultravirus is simply beyond the powers. The legal phrase ultravirus is applicable only to acts done in the legal powers of the doers. This presupposes that the powers in the nature are limited. It is a fundamental rule, company law, that objects of the company as stated in memorandum can be departed only to the extent permitted by the act. Thus, हाँ, लोग रेक्टिफाई नहीं कर सकते ना। अभी इसमें लिखा है ऑन दिस अकाउंट कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम एम्प्लॉइंग द फंड्स फॉर द पर्पस अदर देन सैंक्शन इन द मेमोरेंडम। लाइकवाइज इट कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम द वन इट इज ऑथोराइज टू कैरी ऑन। नहीं कर सकते हो आप। द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस इज दैट कंपनी कैन नाइदर बी स्यूड ऑन एन अल्ट्रावायरस ट्रांजेक्शन नॉर इट कैन स्यू ऑन इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। What is certificate of incorporation under? What are the effects of registration? Registration में क्या मिलते हैं आपको? Registrar on the basis of documents and information filed for the formation, the company, the registrar shall register the documents and issue certificate that the company is incorporated in the prescribed form. No, with the effect that proposed company is incorporated under the act. The company becomes a legal entity from the date mentioned in the certificate of incorporation and continues to exist. तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताया क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? यू बिकम अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, you have perpetual succession, the property, its property is not the property of shareholders. ये इफेक्ट्स ऑफ क्या, ये नॉर्मल है, हमको मालूम है। ये सब हम लोग ने किया हुआ है। अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन सब एवरीथिंग हैज बीन डन। हाँ, हाँ,
हाँ, ये सब तुम लोग पढ़ो खुद, अभी कुछ है नहीं इसमें। ये डॉक्ट्रिन ऑफ क्या है, लिफ्टिंग ऑफ हाँ, दिस ऑल यू डू इट ऑन योर ओन। ओके, हाँ ये खुद करो अभी रिविजन। हाँ समझा कि नहीं, ये सब क्वेश्चन ये तुम लोगों को सब उसमें से ही है, समझा। तो तुम लोग क्वेश्चन देखो कैसे और फ्रेम करो क्वेश्चन आंसर इसके, अपने आंसर दिए हैं ऊपर, ये लोग की दूसरी लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, कोई भी लिखो चलेगा, फैक्ट सब बराबर होने चाहिए। हाँ ओके, तो अभी एक कम खत्म हुआ रिवीजन, फॉलो दिस।